ક્રાંતિ કરવાની વાત કરો છો, તેમને થોડા કમ્પ્યુટર્સ આપી. જમાવટ પહોંચી ગયું છે અત્યારે રાહુલ ગાંધીની રેલીમાં. ચૂંટણી વાળા એક વખત હાથ જોડશે, પછી અમારા હજારો વખત હાથ જોડવાના. ગુજરાતમાં અમે ચૂંટણી યાત્રા શરૂ કરવા 4 વર્ષ પછી તમારી બીજી નોકરી શોધી લેવાની, તો તમે લોકો સમજો છો તમારી જાતને? માં પોતાનું રક્ત અને દૂધ બરબાદ નથી કરતી પોતાના બાળકને જન્મ આપીને. કોઈ પણ માતા પોતાના નાનકડા ઉછરેલા બાળકને, પોતાની આંખ સામે ઉછરેલા બાળકને મરી જવા માટે પેદા નથી કરતી. પણ જ્યારે દેશની વાત આવે છે ત્યારે દેશ માટે એ પોતાનું સર્વસ્વ કુરબાન કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. પોતાના વાલ સોયાને એ દેશ માટે સમર્પિત કરી નાખે છે. પરંતુ એ જ રાષ્ટ્ર જો એ શહાદતની કદર ન કરી શકે તો, જો સરકાર, સિસ્ટમ, બધા જ જવાબદારો પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલી જાય તો, અને એટલે જ જવાબદારો કર્તવ્ય જ્યારે ભૂલે છે ત્યારે એને યાદ અપાવવા માટે શહીદના પરિવારોએ જાતે સામે આવવું પડે છે. એમણે પોતાના અધિકારની માંગણી કરવી પડે છે અને મળેલું શૌર્ય ચક્ર પરત કરવું પડે છે. અને આ વખતે એ પરિવારની સાથે આવ્યા છે રિટાયર્ડ ફૌજીઓ પણ, અને સવાલ કરી રહ્યા છે આ દેશની સરકારને, આ દેશની સેનાના વડાઓને કે એક શહીદનું મૂલ્ય તમે આ રીતે કરશો? शौर्य चक्र जो है 12 फरवरी 2017 के में जो उन्होंने अदम्य साहस बताया था, उस समय 4 आतंकवादियों को गोपाल सिंह ने ठार किया था. वो ऑपरेशन में उनको जो है शहीद हो गए थे. उसमें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो है अवार्ड जो है इनको नक्की किया था. वो अवार्ड के लिए जो है वो अवार्ड अभी 2022 में 5 सितंबर 2022 को पोस्टल कुरियर के थ्रू आया, जिसका हमें बहुत दुख हुआ. इस चीज़ से मेरी तो नींद हराम हुई है और मैं प्रतिज्ञा भी लेता हूँ, भदौरिया जी से मैं वादा भी करता हूँ कि जब तक आपको राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन के अंदर शौर्य चक्र के लिए सम्मानित नहीं किया जाता है, तब तक आज से मेरी ये मुहिम चालू रहेगी. आतंकवादी के मुठभेड़ के हमले में तो उसकी तो वो हमको प्राप्त हुई शहादत, और वैसी कोई मतलब शौर्य चक्र को लेकर हमको दुख हो रहा है कि थोड़ा सम्मान से मिले तो अच्छा है. આ વાત વર્ષ 2017ની છે, જ્યારે આપણે બધા જ આપણા ઘરે અથવા મિત્રોની સાથે અથવા બીજા કોઈ કામ અર્થે હોઈશું. ત્યાં આપણને જીવ જવાનો કોઈ ડર નહોતો. પણ કદાચ એ જ વખતે જમ્મુ કાશ્મીરમાં કેટલાક આતંકવાદીઓ છુપાયા હોવાની વાત ભારતીય સેનાને મળી અને જવાનો લડવા માટે ગયા. આતંકવાદીઓની સામે લડતા લડતા વર્ષ 2017માં ગોપાલસિંહ ભદૌરિયા નામનો એક જવાન શહીદ થયા. પણ આ શહીદ થયેલા અમદાવાદના જવાનના ઘરે કુરિયરથી શૌર્ય ચક્ર મોકલી દેવામાં આવતા એ વિવાદ થયો છે. માતા પિતાએ એને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે. સામાન્ય રીતે રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે શૌર્ય ચક્ર એનાયત કરવામાં આવતું હોય છે. હવે એના બદલે કુરિયરથી આવતા શહીદના માતા પિતા નારાજ થયા છે અને એમણે એ શૌર્ય ચક્ર પરત મોકલી દીધું છે. કર ચલે હમ ફિદા જાનુ તન સાથીઓ, અબ તુમ્હારે હવાલે વતન સાથીઓ. આજે એક શહીદ પરિવાર દુઃખી છે. શા માટે દુઃખી છે? 2017માં ગોપાલસિંહ, શહીદ ગોપાલસિંહ જે શહીદ થયા હતા, અને ત્યારબાદ 5 વર્ષ બાદ એમના પરિવારને શૌર્ય ચક્ર મોકલવામાં આવ્યો, અને એ પણ કુરિયર દ્વારા, જેના કારણે તેમનો પરિવાર દુઃખી થઈ ગયો. અને આ જે કુરિયર આવ્યું હતું તે કુરિયર તેમને રિટર્ન કરી દીધું, કારણ કે તેમને આ શૌર્ય ચક્ર એવી રીતે કુરિયરમાં નથી જોતું. એટલા માટે શું છે આખી બાબત તેમના પરિવાર પાસેથી જાણીએ. 12 फरवरी 2017 को मुजाहिदीन के आतंकवादियों जो एक घर में छुपे हुए 7 आतंकवादी एक घर में छुपे हुए थे, तो सेना को ऐसा इनपुट मिला कि एक मकान में जो है 7 आतंकवादी छुपे हुए हैं. तो उस मकान की दो बार सर्चिंग हो चुकी थी, लेकिन इन्फॉर्मर ने यही बताया कि वहाँ अभी भी आतंकवादी हैं. और फिर सेना ने पूरे उसके साथ में जवानों के साथ में उस मकान की सर्चिंग की, और सर्चिंग के दौरान एक पेड़ के अंदर ये 7 आतंकवादी उतरे हुए थे. और वहीं जो एक पेड़ का एक दरवाज़ा रखा हुआ था, उसको जैसे ही दरवाज़ा हटाया तो आतंकवादियों ने फायरिंग चालू कर दी. तो जो सीओ साहब गोपाल सिंह और रघुवीर सिंह और एक जवान और था, वो उस समय मकान के ऑपरेशन में सर्चिंग में थे. तो एकदम फायरिंग शुरू हुआ. सब ने अपनी आतंकवादियों ने, इन्होंने जवानों ने अपनी अपनी पोजीशन लेके जो है, और जो है क्या नाम है, फायरिंग शुरू कर दिया. लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा रघुवीर सिंह ने हटाया तो अंदर से फायरिंग शुरू हुआ, और रघुवीर सिंह ऑन द स्पॉट जो है शहादत को प्राप्त हुए. इसी दरमियान काफ़ी घंटों तक
2-2 घंटे के बाद काफ़ी टाइम तक ये जो फायरिंग होती रही और पूरी रात जो है निकल गई, 7 से 8 घंटे फायरिंग रुक रुक के चली। उस दरमियान जो है सिपाही रघुवीर सिंह जो है वो उनकी बॉडी दूसरे उस पे हुई। धीमे धीमे इन लोगों ने गोपाल सिंह ने और सीओ आयमन मुखर्जी ने पोजीशन लेके और जहाँ रघुवीर सिंह की बॉडी पड़ी हुई थी उसको लेने के लिए बढ़े। और जैसे ही गोपाल सिंह और सीओ साहब पहुँचे वहाँ पे तो उस जो है एकदम आतंकवादियों ने निशाना लेके और उनके ऊपर फायरिंग शुरू किया, लेकिन गोपाल सिंह को एकदम नज़र पड़ गई आतंकवादी, तो उन्होंने सीओ साहब को धक्का दिया और जो है गोली जो है उनके एक गले में लगी, एक कंधे पे लगी और उन्होंने अपनी पोजीशन ली और घायल होते हुए भी 2 घंटे तक वो फायरिंग करते रहे। उसके बाद जो है उनको हॉस्पिटल में ले जाए गए। 4 आतंकवादी मार गिराए और बाकी के 3 आतंकवादी वहाँ से भाग छूटे। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ उन्हें वीर गति को प्राप्त हुए। इसके लिए जो है राष्ट्रपति ने सिपाही रघुवीर सिंह को और गोपाल सिंह को शौर्य चक्र देने की घोषणा की 2017 में। 2018 में जो है उसका अलंकृत समारोह हुआ। कुछ कारणों से जो है हमें बुलाया नहीं गया, उसके कारण जो है इस 5 साल का हमें इंतज़ार करना पड़ा। 5 साल के लंबे इंतज़ार से हमने जो है ये एक आशा हमने जब कोर्ट का फैसला आया और हमने कोर्ट में उसको किया तो कोर्ट का फैसला आया और जो है एनओके के प्रश्न को हमने जो है उसको कोर्ट के द्वारा हमें एनायत किया करे। एक जो सम्मान पत्र भी है वो फौज के द्वारा नहीं भेजा जाता। सम्मान पत्र भी जो फौज जो है वो किसी अफसर के द्वारा देते हैं। तो ये तो एक शौर्य चक्र है जो मतलब बहुत गरिमामयी वस्तु है जिसको पूरा देश उस समारोह होता है 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो भी जो शहीद वीर होता है उसकी यश गाथा गाई जाती है, सुनाई जाती है और पूरा देश उससे गर्व लेता है और उससे प्रेरणा मिलती है। तो हमें भी इसी तरह का एक सपना था हमारा कि हमारे वीर सपूत का जो है वो उसको राष्ट्रपति भवन में वो मेडल मिले हमें और उसकी वीर गाथा पूरा देश सुने, सेना के जवानों को भी उससे प्रेरणा मिले, देश के लोगों को भी प्रेरणा मिले और हमारा भी सम्मान, उसमें हमारे बच्चे का सम्मान जो है हो, तो वो एक अपेक्षा थी। लेकिन वो प्रोटोकॉल का भंग किया है, बराबर है, वो बहुत दुख है। ऐसा होता नहीं है, अभी तक मैंने नहीं सुना है कि जो मैं ये पहली बार ही ऐसा देख रहा हूँ कि जो है उससे कुरियर से आया है। तो हमारा यही है कि अगर हमें सम्मान से देना है तो सम्मान से दो, नहीं देना है तो उसके लिए हम जब तक समय रहेगा तब तक हम उसका इंतज़ार करेंगे और सम्मान से जब मिलेगा तब हम उसको लेंगे। हमारा संदेश महामहिम राष्ट्रपति के लिए और प्रधानमंत्री श्री के रक्षा मंत्री जी के लिए और सेना के प्रमुख के लिए यही है, उनसे विनती है कि मुझे अगर सम्मान देना है, अगर देना है सम्मान, अगर उनको लगे कि हमारे वीर पुत्र ने ये जो काम ये उसके लिए किया है तो उसका जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हमें सम्मान दिया जाए, न कि और किसी के थ्रू। अगर जो देना है तो मुझे राष्ट्रपति के थ्रू मिले तो ही हमारा जो ये क्या ना अपमान हुआ है तो ही हमें जो है उससे संतुष्टि मिलेगी, नहीं तो हम व्यथित हैं हम लोग। आतंकवादी के मुठभेड़ के हमले में तो उसकी तो वो हमको प्राप्त हुई शहादत, और वैसी कोई मतलब शौर्य चक्र को लेकर हमको दुख हो रहा है कि थोड़ा सम्मान से मिले तो अच्छा है। જે સન્માન એમને રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં મળવું જોઈએ એ મળેલું સન્માન એમને કુરિયરથી સ્વીકાર્ય નથી અને એટલા જ માટે એમણે લડત શરૂ કરી છે। આ મુદ્દા પર અમે ગુજરાતમાં ડિફેન્સના પીઆરઓ સાથે પણ સંપર્ક કર્યો, એમની સાથે વાત કરી, પણ એમણે આ મુદ્દે કંઈ પણ કહેવાનો ઇનકાર કરી દીધો। આ સિવાય અમે કેટલાય ડિફેન્સ એક્સપર્ટ સાથે વાત કરી તો દરેકની એક જ વાત હતી કે મળવું તો જોઈએ આ સન્માન એમને રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં અને એ પણ પૂરી વ્યવસ્થાની સાથે, પરંતુ આ કેમ થયું એનો કોઈની પાસે જવાબ નથી। सबसे पहले तो मैं आपकी सभी प्रेस मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बात को, इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से आप लोगों ने लिया। मुझे भी जो है भावनगर स्टेट के जो युवराज साहब है जयवीर राज सिंह जी, उनके माध्यम से ये चीज़ के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज दिया कि भाई ये ऐसा एक जवान के साथ हुआ है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि शौर्य चक्र जो है ये गोपाल सिंह भदौरिया को जो है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित हुआ था। तो
अब जो है वो इनको प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको ये चीज़ जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर इनके माता पिता को बुला के और वहाँ देना चाहिए। जो आज तक फ़ौज की प्रोसेस हमने जो देखी है, जो भी गैलेटरी अवार्ड होता है, उसमें ये चीज़ होती है। बट कहीं न कहीं ये किस वजह से हुआ है, क्या है, ये तो मैं आप सभी कलमवीरों को मैं आप लोगों को मतलब चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी प्रेस के बंधु जो कलमवीर है इस देश के, तो उन लोगों ने इसकी जांच पड़ताल पूरी ताकत के साथ करनी चाहिए, ताकि पता चले कि ये चूक इस देश में हुई है, क्योंकि ये देश के तिरंगे का अपमान है, उनके माता पिता का अपमान है और माँ मातृभूमि का अपमान है, जो कि कदापि ये चीज़ हम स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये हुआ है। इस चीज़ से मेरी तो नींद हराम हुई है और मैं प्रतिज्ञा भी लेता हूँ, भदौरिया जी से मैं वादा भी करता हूँ कि जब तक आपको राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन के अंदर शौर्य चक्र के लिए सम्मानित नहीं किया जाता है, तब तक आज से मेरी ये मुहिम चालू रहेगी। जैसे मैंने मिशन 1 CR शहीद जवानों को 1 करोड़ मिलना चाहिए, वो मुहिम जो मैंने चलाई थी सिग्नेचर कैंपेन, उसी तरीके से मैं 15 दिन का सरकार को गाइडलाइन दे रहा हूँ। आने वाले जो भी जिसकी भी गलती है, इस चीज़ को सुधारें और इनको जल्द से जल्द एक लेटर आए डिपार्टमेंट के थ्रू, अन्यथा 15 दिन के बाद मेरे को जो है सड़कों पे उतरना पड़ेगा और मांग करनी पड़ेगी, पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा कि ये चीज़ हमारे देश में हुई है, हमारे गुजरात में हुई है और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये माँ मातृभूमि का अपमान है। शहीद जो है कोई गोली किसी को बोल के नहीं आती है। और आपने देखा भी होगा यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जी जो आज कर्नल रैंक पे उनको सम्मानित है पैरा कमांडो के अंदर। तो मैं आज महेंद्र सिंह धोनी जी को भी ट्वीट करके बताऊंगा और आशा करता हूँ कि धोनी जी भी जो है इस चीज़ को, क्योंकि वो एक साथ साथ में एक मेंबर भी है एक फ़ौज के, तो वो भी जो है इस चीज़ को सीरियस ले और आगे इसके बारे में बताए। आप तस्वीर भी देख सकते हैं, धोनी जी ने पूरी ताज होटल के ऑपरेशन के बारे में जो डिटेल थी वो भी इनसे गोपाल सिंह जी से बातचीत की है, तो वो कभी नहीं भूलेंगे। जो फौजी महकमे में आ जाता है वो उनको सब याद रहता है। तो आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, न्याय मिलना चाहिए, ये गलत हुआ है। और आप सभी कलमवीरों से मेरी 2 हाथ जोड़ के विनंती है कि जितना हो सके इस चीज़ को सरकार के कानों तक डालिए, क्योंकि मानता हूँ सरकार के पास बहुत सारे काम है, लेकिन ये काम जो है प्रायोरिटी का है, माँ मातृभूमि का है। और अभी जो सरकार भी है वो देश प्रेम की सरकार अपने आप को बताती है। तो ये चीज़ जो है पॉलिटिकल एंगल से नहीं, एक सैनिक के सम्मान की बात है, एक सैनिक के माता पिता के सम्मान की बात है, एक माँ मातृभूमि के सम्मान की बात है और पूरी सेना के सम्मान की बात है। अगर ऐसा होगा तो जो बंदे आज नौकरी कर रहे हैं, जो सिपाही आज नौकरी कर रहे हैं, उनके अंदर जो एक गलत मैसेज जाएगा। और ये मैसेज मैं एज ए रिटायर्ड सोल्जर वाजा विशाल, मैं ये मैसेज नहीं जाने दूंगा और इसके लिए जो भी लड़त लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा।